حالیہ پاکستان بھارت کے تناظر میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا فیوچر میں جنگ ہوگی؟ کیونکہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے اور انڈیا بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو یہ سوال آپ نے کسی عسکری ماہر سے کیا ہوتا تو مجھ سے 1000 گنا بہتر سوال کا جواب دیتا۔ میں ایک عام سادہ سا آدمی ہوں کہ جو دنیا بھر کے اخبارات کا صبح مطالعہ کر رہا ہے اور اس کے بعد اپنے ملک کے اخبارات کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ 2-3 دن کا جو مارکہ ہوا ہے، یقیناً اس نے پاکستان کو ایک بہت عزت بخشی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو ایک خوف طاری ہوا ہے وہ یہ طاری ہوا ہے کہ چین نے دنیا کی جو آسمانی فضا ہے اس کے اوپر اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں خواہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو، یا غزہ اور اسرائیل کی جنگ ہو، یا یوکرین اور اس کے بعد روس کی جنگ ہو، یا ویتنام کی جنگ ہو، اس جنگ کے پیچھے نظریہ بعد میں آتا ہے، اسلحہ بیچنے والے پہلے آتے ہیں۔ یہ دنیا پوری کی پوری جو ہے ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی محتاج ہے۔ ہمارے دوست ہیں مجاہد کامران، انہوں نے ایک بہت موٹی سی کتاب لکھی ہے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا، اور اب تو دنیا مانتی ہے کہ یہ دونوں جنگیں جو ہیں یہ سود خوار بینکاروں کی وجہ سے ہوئی تھیں، اور انہوں نے کوئی 17 کروڑ لوگ جو مار دیے تھے صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیسے جو تھے وہ 5 بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر انویسٹ کیے ہوئے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کی جنگ ہے، اس نے پاکستان کو ایریل سپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ چین کی طرف سے حاصل ہوئی۔ چین نے آپ کو اپنا بیڈو سسٹم دیا جو کہ 44 کانسٹیلیشن کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ اس کی وجہ سے چین نے ان کے رافیلز اور ان کے جو 300 ایویکس جو تھے وہ جیم کر کے رکھ دیے، جہاں تک کہ S-400 کی رشین بیٹری جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، جس کے بعد پھر آپ کو PL-15 جو کہ پیورلی چین جو ہے استعمال کرتا تھا وہ دیا گیا، اور وہ آپ نے استعمال کر کے ان کے جو سٹنگ جو ڈک بنے ہوئے تھے ان کو اڑا دیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا، جس کے اگلے دن اس کی خفت مٹانے کے لیے اسرائیل نے اپنے ڈرون بھیجے، اور ڈرون پاکستان کے تقریباً 100 مقامات پہ گئے، اور وہ ڈرون جو تھے ظاہر بات ہے اس سسٹم کو نہیں کر سکے۔ تو یہ وجہ ہوئی کہ انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے۔ اب آپ میں ایک بات یاد رکھیے، اب اگر انڈیا اور پاکستان کی آپ کے ساتھ جنگ ہوگی تو اس جنگ کے اندر ساری دنیا جو ہے وہ لوگ جو کہ اپنے اسلحہ بیچتے تھے ملائیشیا کو، انڈونیشیا کو، سعودی عرب کو، قطر کو، بحرین کو، وہ اپنی مارکیٹ واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کا ایک پورا بہار چین کے خلاف جو ہے قسم کا ہو گیا۔ انڈیا کی طرف سے جو سب سے اہم جو نظر آتا ہے آگے مجھے، جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک کے لیے تیاری مکمل ہے، ایک کام انہوں نے کر دیا۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ وہ دریاؤں کا پانی بند کر دے۔ اب دریاؤں کا پانی بند کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ 15 دن ہے، 15 دن سے زیادہ وہ پانی بند نہیں کر سکتے۔ جس دن مانسون شروع ہوئی، انڈیا کا باپ بھی پانی بند نہیں کر سکتا۔ 40 سال لگے ہیں راوی کا پانی بند کرنے کے لیے، 40 ایئرس۔ اس کے لیے آپ کو بہت بڑا ریزروائر بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نہروں کا سسٹم بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ ریزروائر بنا لیں تو وہ خود ہی اچھل کے آپ کو تباہ کر دے گا، یا سیپیج اور سیم تھور اتنا ہو جائے گا کہ اپنی دھرتی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک نعرہ ان کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ ہم پانی بند کرتے ہیں۔ پانی یہ کوئی نلکا نہیں ہے کہ جس سے آپ نے ٹوٹی لگائی اور بند کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ زمینی حملے کی طرف آئیں گے۔ اب زمینی حملے میں ایک سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ زمینی حملے کے وقت آپ کو جیسے اب بھی ہوگی، جو موسٹ پرابلی سوچتا جا رہا ہے کہ کشمیر کی طرف سے اور بہاولپور کے ایک دو علاقوں کی طرف سے جہاں وہ آج کل ایکسرسائزیں کر رہے ہیں، تو وہ زمینی جنگ وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے ہوگی، اور اس کے ساتھ سپورٹ میں اس لیے کہ انہوں نے 57 لوگوں کا وفد، جس میں تمام پارٹیاں، ہاں کانگریس ان کی جانی دشمن ہے، اس کے ششی تھرور کو بھیجا ہے 33 ملکوں کے دورے میں، اور سارے وہ ملک ہیں جو زخم کھائے ہوئے ہیں۔ ملائیشیا نے کہا آرڈر کینسل کرو رافیل کا، انڈونیشیا نے کہا آرڈر کینسل کرو اس کا رافیل کا، اس کا S-400 جو ہے رشیا کا، اس کا آرڈر جو ہے وہ برنائی نے کینسل کیا۔ ٹرمپ اپنا سودا کر کے آ کے چلا گیا، وہ بھی ڈاما ڈول ہیں۔ اور یہ ہے اس وقت عالمی صورتحال۔ جہاں تک آپ سے سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور اگلے
500 साल भी ये ख्याल दिल से निकाल दें कि इंडिया और पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकेंगे। एक न्यूक्लियर बम जो छोटी तादाद का होता है, जिसे हम टैक्टिकल वेपन होते हैं कहते हैं, वो अगर 10 की तादाद में छोटे छोटे जो 1 लाख की आबादी के लिए होते हैं, उसके लिए वो अगर इस्तेमाल कर दिए हमने, तो पूरी दुनिया में सिर्फ 10 दिन के अंदर एक ऐसी घटा छाएगी जिसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। उसको कहते हैं जैसे आपके स्मोग होते हैं, और ये फिजा जो है 25 साल तक कायम रहेगी और सिर्फ 20% रोशनी दुनिया की जमीन तक पहुंचेगी और एक पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फैमान यानी आलमी कहत जो है वो आ जाएगा। तो अगर आपने शुरू की भी तो बीच में कूदने वाले बहुत आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात का ध्यान रखें किसी भी तौर पर भी, कभी भी, हमेशा भी, और आज भी मैं कहता हूं कि ज़मीनी जंग जो है, फिजाई जंग कहीं भी लड़ी जा सकती है, ज़मीनी जंग के लिए आपके अवाम का साथ देना इंतहाई ज़रूरी होता है। इंडिया के लिए बहुत हॉस्टाइल ज़मीन है, कश्मीर बॉर्डर पे है, इंडिया बॉर्डर पे है, आपके लिए पंजाब है, कश्मीर है, सब कुछ है, हर चीज़ है। उसके बावजूद भी आपको पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती की फिजा पैदा करनी पड़ेगी, नफरतें ख़त्म करनी पड़ेंगी और लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, मेरा औरिया मकबूल जान साहब से सवाल है कि प्रिंट मीडिया का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद सहाफ़त, जिसे सहाफ़त कहते हैं ना, वो नहीं रही, कारोबार बन गया हुआ है। और गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से कोई भी सहाफ़ी किसी अखबार का मालिक नहीं है। पाकिस्तान में सहाफ़त उस वक्त थी जब ज़फ़र अली ख़ान उसका मालिक था, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसका मालिक था, जब मौलाना मौदूदी अपना अखबार निकालते थे, जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपना अखबार निकालते थे। ये जब इवन मीर खलीलुर रहमान ने जब निकाला था तो खुद अपने हाथ में खुद हाकर के तौर पे उसने वो अखबार बेचा था। लेकिन अब तो मसला ये है कि एक कुल्फी बेचने वाले का अखबार है, एक घी बेचने वाला का अखबार है, एक तंबाकू बेचने वाले का अखबार है। ब्यूरोक्रेट का अपना अखबार कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेट काम करता है उसमें, ठीक है, अपना अखबार नहीं। अपना अखबार अगर ब्यूरोक्रेट उसका हो सकता है कि जिसने हराम कमाया हो वो अखबार निकाल सकता है ब्यूरोक्रेट, ठीक। तो एक बात तो ये है कि हुआ ये कि उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने पाबंदी, ये लोग कहते थे हमने आज़ादी हासिल की है, मैं कहता जिस दिन जिन्होंने दी है खींची ना, 1 मिनट में वो खींच लेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान के सारे अखबार और पाकिस्तान के सारे टेलीविजन चैनल जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन चैनल और पाकिस्तान के किसी सरकारी अखबार में डल चुके हुए हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि पता यह है कि उन्होंने कहा हम तुम्हारे घी मिल को देख लेंगे, हम तुम्हारे कॉलेज को देख लेंगे, हम तुम्हारे। तो दूसरी बात ये हुई है जिसकी वजह से तबाही हुई है, वो ये हुई है कि पैसा बहुत आ गया। 2007 में वो कॉलम निगार जो मेरी तरह 1000 रुपया लेता था, उस कॉलम निगार को एक अखबार नवीस जो कि 101 अखबार का मालिक जो कि 120 फैक्ट्रियों का मालिक था, उसने उसको 1 लाख रुपया दे दिया। फिर उसके बाद देखा देखी सारे। और दूसरी बात ये थी कि रिपोर्टर खत्म हो, दुनिया में कहीं रिपोर्टर खत्म नहीं होता, पाकिस्तान में रिपोर्टर खत्म हो गया। कॉलम निगार जो है वो ऐसा बन गया जैसे सुकरात होता है, और आज सारे सुकरात मर गए, आज कोई सुकरात नजर नहीं आता। वो जो कभी कभी क्या आवाजें बुलंद किया करते थे मुशर्रफ दौर के अंदर, आज उनकी आवाजें सुनाई नहीं देती। वो ना सुकरात रहे, ना बुकरात रहे, ना कोई हुसैन के वारिस रहे, ना करबला के वारिस, कोई नहीं रहा ना। उसकी वजह ये थी कि फिर उसके बाद आप मसले आ जाते। जो बंदा 50 लाख रुपया तनख्वाह लेता है अपने टीवी की एंकरिंग करने की, या 50-25 लाख रुपया लेता है एक अखबार की, उसने एक घर बनाया होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो कहता है मैं ये कैसे छोड़ूं। जो नौजवान है उसने 2 गर्लफ्रेंड रखी होती है, उनको कैसे छोड़ सकता है। ऐसे हालात के अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर के तौर पे आपका मीडिया खरीद लिया है। और ये पाकिस्तान के साथ अलमिया नहीं है, दुनिया पूरी के अंदर एक किताब है मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट, नॉम चॉम्स्की की किताब है। वो कहता है किस तरह हम कंसेंट बनाते हैं, और उन्होंने लिस्ट दी है उन बड़ी बड़ी कंपनियों की जो उनके अखबार मालिक हैं। दुनिया पूरी का मीडिया, प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, आज से पहले 122 कंपनियों की मलकियत थी, आज सिर्फ 3 कंपनियों की मलकियत है। सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी है, उसकी 33% है, उसके बाद रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी है, उसकी 31% है, और बाकी इस तरह टर्नर वगैरह को मिला के। इसीलिए गला घूंटना आसान हो चुका हुआ है। कोई मुस्तकबिल
कभी तबाह नहीं होता, हर्फ का मुस्तकबिल रहता है। हर्फ प्रिंट मीडिया, लेनिन का इनकलाब आ रहा था, सैकलो स्टाइल से चलता था, उसके बाद उसका इमाम खुमैनी वाला और दूसरा इनकलाब आता था, वो शायरी में डलता था, मीर असद मर्दे के जंजीर गुलामा बिशकनत दीदाम मजरूज ने दीवार जिंदा ने, इकबाल के शेर चलते थे। पाकिस्तान के अंदर भी ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, नून वल कलम, हमने तुम्हें कलम के साथ इल्म दिया है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद हाँ अखबार खत्म हो जाएगा, लिखने वाला कभी खत्म नहीं हो सकता। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मेरा औरिया मकबूल जान साहब से सवाल है कि पाकिस्तान की 60% जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर से कम है, तो इस पर्सपेक्टिव में इकबाल ने जो जवानों को पैगाम दिया, और आप क्या जवानों को पैगाम देते हैं कि वो इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल में एक इफेक्टिव किरदार अदा करें? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जवान किरदार अदा करे, जवान किरदार अदा कर रहे हैं, मेरी नस्ल ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, बल्कि जो मेरी आबा अजदाद ने मुझे विरसे में दिया था, हमने और उसको तबाह बर्बाद किया। मेरी नस्ल में खा वो मेरे जैसा कोई सिविल सर्विस का मुलाजिम हो, खा वो फौज का अफसर हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो उस्ताद हो, उसने पाकिस्तान की बर्बादी में पूरा हिस्सा डाला है और हमें तस्लीम करना चाहिए। मेरी नस्ल एक मुनाफिक नस्ल थी। मेरी नस्ल इख्तियार से, इक़्तिदार से, ताकत से डरती थी और मसलहत पसंद थी, मसलहत कोश। नौजवान नस्ल सच बोलती है और बड़े धड़ल्ले से सच बोलती है। नौजवान नस्ल मुनाफिक नहीं है। मैं वाहिद नस्ल है जिसको पता है कि मगरब कितना चिथड़ा ज़दा है। हम मुतासर थे, उन्होंने मगरब की वो सारी की सारी चीज़ जो कि इंटरनेट से उन तक पहुंची है, उन्होंने उस मगरब को देखा है और उसको जाना है कि ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आज भी आपसे बताऊं कि जब मैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक खातून थी जो हिजाब लेती थी और हमें उसका नाम भी पता था। पेशावर यूनिवर्सिटी में एक शख्स था जिसकी दाढ़ी थी, उसका नाम था काजी हुसैन अहमद। आज 37% खवातीन हिजाब लेती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और दाढ़ी जो है नजर आती है। आज से 4 साल पहले सनसिल्क ने हिजाब का शैम्पू मार्केट किया था। कोई मार्केट थी तो पैदा किया था ना। हमारी नस्ल को मगरब ज़दा अंग्रेज की पाली हुई लोरियों ने हमारी नस्ल पैदा की थी। ये नस्ल वैसी नहीं है। हमारी नस्ल में ये आज का जो दौर है, मैं 5 इलेक्शंस मैंने करवाए हैं, 5 इलेक्शन एज ए रिटर्निंग ऑफिसर। पाकिस्तान की इलेक्शन की जो धांधली की तारीख जो है वो बड़ी खौफनाक है, लेकिन जो आखिरी इलेक्शन हुआ है उसमें पूरी कौम ने ये साबित कर दिया है कि हम कैसे किसी को शिकस्त दे सकते। और ये बड़ा कड़वा सच है जो मैं बयान कर रहा हूं। मैं आज भी बात करता हूं कि अल्लाह ने जो आयत उतारी है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, हम किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब वो बदलने के लिए तैयार नहीं होती। कौम ने अल्लाह को बता दिया है। अब ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है कि वो कब बदलता है, किस वक्त बदलता है। और उसने जो 60% नस्ल यहाँ पैदा की है ना, ये कमाल की पैदा की है। और उसके एक अंदर सिर्फ एक आखिरी बात करता हूँ, लंबी बात नहीं करता हूँ। जब बनी इसराइल को निकाला गया है, वहां पर हजरत मूसा लेके पहुंचे हैं, तो उसने कहा जाओ, हुक्म दिया जिहाद करो। तो उन्होंने कहा हाजा कौमन जब्बारीन, ये कौम है ये बड़ी ताकतवर है, तू लड़, तेरा अल्लाह लड़े। अल्लाह ने 40 साल की सजा दी थी। वजह 40 साल में एक नई नस्ल तैयार हो सकती है। पाकिस्तान में पीछे चले जाइए 40 साल, 1975 से लेके अब तक के जो 40 साल हैं, 32 साल थे। हमने 40 साल गुजार दिए हैं, अब सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है। मोहम्मद नाचीज का नाम मोहम्मद नवीद नवाज है और मेरा सवाल औरिया मकबूल जान साहब से है, क्योंकि मैं जानता हूँ और रहमान फारिस साहब के साथ भी है। इनका नाम बाद इसमें लिया है कि इसलिए लिया है क्योंकि ये हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये ज़रा हो सकता है सच बोलने में मुश्किल पेश आए इनको। वो रिटायर्ड हैं, वो सच बोलने में आज़ाद हैं। नहीं, मैं जब नौकरी में तब भी बोलता था, 16 साल नौकरी में लिखा है। अर्ज ये है कि
आप इकबालियात के माहिर भी हैं, इकबाल के फैन भी हैं, मेरा सवाल भी उसी हवाले से है। वो इकबाल जो सिख मजहब के बानी गुरु नानक के बारे पूरी नज़म लिखता है, वो इकबाल जो कार्ल मार्क्स पे नज़म लिखता है और साथ ये भी कहता है पैगंबर नीस्त के पैगंबर नहीं है लेकिन काम और बातें इसके पैगंबरों वाली हैं। वो इकबाल जो कार्ल मार्क्स के फलसफे की बुनियाद पर बहुत बड़ी एम्पायर बनाने वाले लेनिन पर नज़म लिख डालता है, वो इकबाल जो ये कहता है कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें इसकी, ये गुलसिता हमारा। उस इकबाल ने पाकिस्तान के बारे एक नज़म तो लिखना दूर की बात, एक शेर भी नहीं कहा, बल्कि एक मिसरा भी नहीं कहा। तो सवाल ये है कि क्या ये सरासर ज्यादती नहीं है कि इकबाल को मूरद इल्जाम ठहराया जाए कि इकबाल बड़े सगीर के कत्ल का ख्वाब देखने वाला था? तशरीफ रखें, सुन लीजिए। उसने कभी ख्वाब नहीं देखा। मैं उसके बेटे का जस्टिस जावेद इकबाल का हमनवा हूं, जो ये कहता है कि मेरे बाप की शख्सियत का तशख्खुस मसख न करें, वो बड़े सगीर की तकसीम का कत्ल देखने का ख्वाब देखने वाला नहीं था। सुभान, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। देखें, पहली बात तो ये है कि इकबाल ने जो कार्ल मार्क्स के बारे में शेर लिखा है, आप जरा पूरा शेर पढ़ा करें। वो इबलीस की मजलिस शूरा में शैतान का एक मशीर कहता है, क्या है उस यहूदी की शरारत का जवाब, ठीक है, आग अली में बेतजल्ली, वो कलीम है जिसके पास तजल्ली नहीं है। आ मसीह बेसलीब, वो मसीह है जिसके पास सलीब नहीं है। नेस पैगंबर व लेकिन दर बगल कार किताब, कंबर तो है लेकिन किताब लेके घूमता फिरता है। मजाक उड़ाया उसने कार्ल मार्क्स का इस शेर में। अब आते हैं लेनिन की तरफ। ए अनफस व आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि है जिंदा व पाइंदा तेरी जात, मैं कैसे समझता कि तू है या तो नहीं है, हर दम मुतगय्यर तकरत के नजरिए। वो कहता है जब लेनिन वहां पहुंचा तो सारी जिंदगी अल्लाह के खिलाफ बातें करता था। उससे कहता वहां जाके अल्लाह झुक गया कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में। और फिर उसने इतनी बड़ी बात की है पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर कि जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जीवा है, सूद एक का लाखों की तरह मर्ग मफाजात। फिर उसने कहा चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, या गाजा है या सागर मीना के करामात। और ये तो इकबाल ने तो लेनिन को अल्लाह के सामने झुका दिया कि मैं गलत करता हूं। एक अब आते हैं कि उसने तकसीम किस लिए नहीं की थी, का जिक्र नहीं किया पूरी। सुन, गुरु नानक को मैं भी मानता हूं भाई, किसने कहा मैं नहीं मानता हूं? गुरु नानक को हम भी मानते हैं। गुरु नानक का तो कब आ जाए, सिखों का तो कब आ जाए, सिखों का तो मदीना जाए। ये किसने कहा गुरु नानक को हम नहीं मानते? वो तो मास्टर आज रोते हैं, हम जाते हैं, वो कहते हैं मास्टर तारा सिंह चंद अगर ना कहता हमें तो हिंदुओं ने धोखा दिया सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात, जिस गुरु नानक की उस अमृतसर का जो है उसका संगे बुनियाद मियां मीर ने रखा हो, वो मेरे मुझसे मुख्तलिफ है। जिस गुरु नानक की उस किताब के पहले 4 श्लोक जो हैं वो उनके अपना पाक पतन वाले जो हैं बाबा फरीद के हों, वो मुझसे मुख्तलिफ कैसे हो सकता है गुरु नानक? एक अब आते हैं इसलिए मैं सर हरादी आप पढ़ाई में पढ़ते थे ना, ठीक है, फिर आप मैट्रिक में आए, फिर आप बीए में आए। अगर मैं कहूं कि प्राइमरी में आप तोतले थे, अगर आए तो आए ना, नहीं तोतले थे तो अभी भी तोतले ही रहेंगे। जब मैं तोतले किस्सा, इकबाल ने 1905 से पहले की नज़में लिखी हैं और उसमें देखें सुने, नानक ने जिसके मन में बालक का गीत गाया वही है ना। उसने पता क्या कहता है, उसमें जो कबाल, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है मेरा वतन, वहां ये कहता है वो। अब मीरे अरब क्या कहता है, वहां ठंडी हवा क्यों आती है? कहता गजवा हिंद लड़ो। इकबाल ने बीच नहीं बोया। मैंने जावेद इकबाल से मेरे साथ नहीं गुफ्तगू फरमाते थे, इसलिए कहते हैं कि आप इकबाल में से। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक तो जावेद इकबाल से, एक तो डॉक्टर सरार से, मैं उस वक्त कंपेयर था। वो कहते थे ये रूहानी बेटा है, मैं तो जिस्मानी बेटा हूं। इकबाल का दुनिया में किसके बेटे ने किसको माना है? मौदूदी के बेटे ने माना, मीर तकी मीर के बेटे ने माना, गालिब के बेटे ने माना,
शेर हाली का कि कैस के बाद उठा कौन बनी आमिर में, फख्र होता है घराने का फकत एक ही शख्स, इकबाल एक पैदा होता है, जावेद इकबाल रुलते फिरते हैं दुनिया के अंदर। इकबाल, जावेद इकबाल अगर इकबाल का बेटा न होता उसकी किताब कोई ना पढ़ता। आप किस बंदे की बात करते हैं आप? और नस्लन मेरा नूह का बेटा अल्लाह ने साबित किया का नहीं है तेरी औलाद, जाओ। तो असल मसला ये नहीं इकबाल को पढ़ा करें, इकबाल जैसा हो तेरे बयाबा उठे। सुने एक सेकंड, 1930 में सुने सर एक मिनट सुने, 1930 में इकबाल फौत हुआ है, 38 में, ठीक है। 1930 का खुतबा मैंने पेश किया था, 1930 का खुतबा मैंने पेश किया था। तसव्वुर जो होता है ना वो रिटर्न लिखे जाता है, वो एक प्रैक्टिकल चीज है, वो शायरी की हवा नहीं है। इकबाल तो यहां से उठा था और उसने जाके मिला था जाके अफगानिस्तान के ज़ाहिर शाह से, और उसने पता है क्या कहा था? उसने कहा था मैं देख रहा हूं कि एक मुल्क यहां बन रहा है, अफगानिस्तान के तल्लुकात यहां ठीक रहने चाहिए। आज भी इकबाल के मजार के ऊपर जब पत्थर लिखा हुआ है ना, अखवान तुर्को ततारे चमनजादे में वहां से आया हुआ है। इकबाल तो, इकबाल सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, वो मुस्लिम उम्मा का लदा शनाख्त चाहता है। पाकिस्तान की बात नहीं करता। पाकिस्तान लदा होगा तो होगी ना, पाकिस्तान एक स्टेपिंग स्टोन है उम्मत के लिए, पाकिस्तान एक बुनियाद है उम्मत के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ खान है, मैं औरिया मकबूल जान से सवाल करना चाहता हूँ। ज़ैद अहमद जो एक मशहूर मजहबी स्कॉलर हैं, वो ये बयान करते हैं कि ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है। माशाल्लाह आप ये बहुत इल्मी शख्सियत है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? ग़ज़वा हिंद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में 18 हदीसें हैं, किसी पीर किसी वली किसी उसकी बात नहीं है। 18 हदीसों में रसूलुल्लाह ने टाइम लाइन बता दी है। आपने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद बैतुल मक़दस का बादशाह हिंद के लिए फौजें भेजेगा और वो हिंद को फतह करेंगी, उसके बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगी और बैतुल मक़दस में उनके खजानों की नुमाइश होगी, और वो लश्कर जो है वो दज्जाल की आमद तक वहाँ रहेगा। अब दज्जाल की आमद में लंबी कहानी मैं बताना नहीं चाहता, लंबी कहानी हो जाएगी। वो मशहूर हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल जसब खरूज अल मलमा खुफ जफ्तल कुस्तुनतुनिया, वो जो है खरूज दज्जाल, वो बैतुल मक़दस के बड़े उसके मेन स्टेज पे होने, पहले फतह होना है अरब, तबाह होना है अरब, एक भी अरब दुनिया में नहीं रहेगा रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक। फिर तबाह होना है ईरान, फिर उसके बाद वहां से मदीना से एक शख्स ने भाग के वहां पहुंचना है, वहां बैत होनी है, फिर यहां से काफिले जाने। ये इकबाल है, इकबाल कहता है कि खिज़्र वक्त अज खलवते दस्ते हिजाज आयत बरू, कि मेहदी निकला वहां से, काफिले अज वादिये दूर अज दराज आयत बरू, यहां से काफिले। जो बैतुल मक़दस पहले फतह करेगा वो ग़ज़वा हिंद लड़ेगा, ये रसूलुल्लाह के हदीस से कहते हैं। मेरी औरिया मकबूल जान साहब से सवाल ये है कि जो मुस्लिम उम्मा है और जो गज़ा की सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान के किरदार के रेफरेंस से आप हमें रोशनास करवाएं ताकि पता चले कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त कहाँ है, और जो एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, जबकि गज़ा में हर तरह की जुल्म और सितम और बर्बरियत हो रही है, मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान का किरदार। जिस वक्त हम मुस्लिम उम्मा का नाम लेते हैं तो मेरे जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान समेत 57 हुक्मरानों को मुस्लिम उम्मा गिनते हैं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर कोई एक कौम बताइए, कोई एक उम्मत बताएं कि बंदा पैदा मिस्र में हो, बंदा पैदा यमन में हो, बंदा पैदा पाकिस्तान में हो और बोस्निया में जाके जान दे और लड़े। बंदा पैदा हो किसी ऐसे मुल्क में जिसका कोई तल्लुक नहीं और कश्मीर में जाके जान दे और अफगानिस्तान में जान दे। कोई कौम, यूरोप हो, अमेरिका हो, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदू मत हो, कोई एक कौम ऐसी बताइए कि जिसमें जान देने वाले सरहदों की परवाह न करते। जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो मेरे इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा पर मैं बड़े दुख और जिसे सच्चाई के साथ बात का, एक भी मुसलमान हुक्मरान नहीं, सब सेकुलर लिबरल बैठे हुए हैं। बशार अल असद में और उसकी जिंदगी में और टोनी ब्लेयर की जिंदगी में कोई फर्क है?
जनरल सीसी में और जनरल फ्रांको में कोई फर्क है? मलेशिया के महातिर मोहम्मद के अंदर और किसी दूसरे मगरबी हुक्मरान के दरमियान फर्क है? मुस्लिम उम्मा तो उस वक्त कहें कि जब ये हुक्मरान, जो अल्लाह का एक हुक्म है कि मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो चीज हमने नाजिल की है जो उसके मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं। मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो चीज हमने नाजिल नहीं की है जो उसके मुताबिक फैसला नहीं करते वो फासिक हैं। मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो जालिम है। अल्लाह खुद फतवा लगा रहा है। इमाम अबू हनीफा का फतवा नहीं है, इमाम मालिक का फतवा नहीं है, मौलवी अनवारुल हक कानी का या फजल रहमान का फतवा नहीं है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिसको हम इख्तियार देते हैं अगर वो नाफिज नहीं करते तो काफिर हैं। तो मेरे मुस्लिम उम्मा पर कोई मुसलमान हुक्मरान है तो मुझे बताओ, नहीं है। तो ये मुस्लिम उम्मा की नाम नहीं। आज हुक्मरान पीछे हट जाएं। मैं देखता हूं पाकिस्तान से लोग जौक दर जौक गज़ा कैसे नहीं जाते। आज हुक्मरान पीछे से हट जाएं। मैं देखता हूं कतर से, कुवैत से, सऊदी अरब से, मिस्र से लोग गज़ा नहीं पहुंचते। हमारे तो रास्ते की रुकावट हुक्मरान है। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला यह है कि 1920 में आया था पासपोर्ट का डिजाइन, 1924 में बनी थी वीजा रेगुलेशंस, और इस दुनिया को एक पूरी चिड़िया घर में तकसीम कर दिया गया था। उस वक्त इकबाल ने पता क्या कहा था? इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है मजहब का कफन है, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत करे काशान दीन नबवी है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है, नजारा देरी ना जमाने को दिखा दे, या मुस्तफवी खाक में उसको मिला दे। ये जो सरहदें बनी है ना, इसकी वजह से हुआ है। मिस्र फर्स्ट, इराक फर्स्ट, सीसी फर्स्ट, फलाना फर्स्ट। आप मुझे बताइए, जब अमेरिका को अपनी रिजीम चेंज करनी होती है तो वो सरहदें देखता है? कहते हैं कि मैंने अफगानिस्तान पे हमला करना है, और दुनिया के 48 गुंडे एक घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कौन बोला था? कोई नहीं बोला था। क्या समझते हैं पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम और मुशर्रफ की सोच एक थी? नहीं थी। हमने पाकिस्तान की सरजमीन से 57,000 दफा अमरीकी जहाज उड़े, सॉटीज वहां से चले, यहां से 3 हवाई अड्डे दिए गए। क्या ये कोई मुसलमान हुक्मरान दे सकता था अपने मुसलमान भाइयों को मारने के लिए? तो ये मत कहें मुझे मुसलमान हुकूमत का ताना। आप सरहदें खोलें, आप कहें मैं देखता हूं कैसे। आप सोच सकते हैं कि कश्मीर के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जंग किसने लड़ी है? जो मेजर जंग लड़ने वाले थे फर्स्ट रशिया के साथ, वो तो एक भी रहने वाला नहीं था अफगानिस्तान का, एक भी रहने वाला। बोस्निया में जाकर जंग किसने लड़ी है? 40 लाख लोग जो हैं वहां शहीद किए गए, उनमें से कोई कहीं से कोई कहीं से। मेरा मुसलमान भाई है, मैं उसके लिए खून देता। मुझे एक कौम तो बताओ मुस्लिम उम्मा के मुकाबले में। हर कोई उठ के खड़ा कहता है मुस्लिम उम्मा किधर है, क्रिश्चियन उम्मा किधर है? जिस चर्च ऑफ नेटिविटी पे हमला हुआ है, जहां ईसाई हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ईसाई उस रास्ते में नहीं जा सकते। जिस रास्ते के पर हजरत ईसा सलीब लेके चले, ईसाई उस जगह नहीं जा सकते जहां हजरत ईसा को सलीब दी गई। कहां है ईसाई उम्मा? बोले इसराइल को निकालो, हमारा सबसे बड़ा हक तो ईसाइयों का है वहां पर। मुसलमान तो बाद में आए थे, उनके सैयदना ईसा पैदा वहां हुए, सैयदना मरियम पैदा वहां हुई, पली बड़ी जवान हुई। किधर है क्रिश्चियन उम्मा? हर कोई गाली देने के लिए मेरे ऊपर चढ़ के दौड़ता है। जी, मेरा नाम विल्सन असगर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। जी जी, मैं और मेरी मिसेस पीछे बैठे थे। कुछ देर पहले आपने कहा कि वहाँ क्रिश्चियन किधर हैं, कि बेथलेहम की बात आप कर रहे थे, तो मेरा दिल धड़कता है वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी बुनियादें हैं। आपने भी यही कहा, हमारी बुनियादें हैं वहाँ पर, और हम पर ये पाबंदी भी है, पाकिस्तानी है, हम वहाँ पे ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपने कहा वो मैं आपसे ये मेरी गुजारिश भी है, और आपसे भी वजाहत भी मैं ये चाहता हूँ कि आपने किस बेस पे ये बात की कि वो कहाँ है, क्रिश्चियन किधर है। क्रिश्चियन इसलिए दूर है पाकिस्तान, अभी आपने देखा नहीं, मैं पूरी दुनिया के क्रिश्चियन। अच्छा ठीक, जी, वो रिप्रेजेंट यहीं पे हम करते हैं ना, तो सुनते हैं, फिर बात दिल में आती है कि जो झंडा है सफ़ेद और ग्रीन कलर का, तो सफ़ेद झंडा कलर किधर चला जाता है, और चांद और तारा किधर चला जाता है। तो जब हम ये बात पाकिस्तानी होते हुए जब सुनते हैं या हर्ड होते हैं या जवाब देते हैं,
तो मैं मद्देनजर पाकिस्तान बहुत अच्छी बात बात। आपने जो कहा बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्रिश्चियन इसलिए दूर हो जाते हैं। आपने आज मैंने चर्च में ये मैसेज भी दिया कि आपने यहूदियों को और क्रिश्चियन को एक इकट्ठा कर दिया, और उस नफरत में वो दूसरी जो सच्चाई के साथ है यहूदी, मैं चर्च में हर दफा सवाल करता हूँ कि यहूदियों के फॉलोअर कौन, यहूदी किसके फॉलोअर हैं? हजरत मूसा के, वो जीसस के नहीं हैं, जबकि मुसलमान जीसस को मानते हैं। तशरीफ रखें, मैं पूरी आपकी बात समझ गया जी, एक लेकिन छोटी सी नहीं, आखिर- मैं सिर्फ आपकी वजाहत कर दूं, जी। मैंने बात पाकिस्तान की नहीं की थी, मैंने मुस्लिम उम्मा का जवाब दिया था। और सुन लें, और मैंने क्रिश्चियन उम्मा का जवाब दिया है। क्रिश्चियन उम्मा पाकिस्तान नहीं है, क्रिश्चियन उम्मा में इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, उसके बाद आपका पूरा यूरोप है। आपको पता है कि लैला खालिद कौन थी? क्रिश्चियन थी, जिसने जहाज उड़ाया था, फिलिस्तीनी थी। आपको पता है जॉर्ज हबाश कौन था? जो यासिर अरफात का साथी था, क्रिश्चियन था। आपको पता है चर्च ऑफ नेटिविटी, कैरन आर्मस्ट्रांग की किताब पढ़ें, उसने कहा मैं वहां गई, मुझे हजरत ईसा की पैदाइशगाह के ऊपर पहुंचा, मुझे ठुड्डे मारे गए। मैं कहां की रहने वाली हूं? अमेरिका की रहने वाली हूं। कितने चर्च हैं अमेरिका के अंदर? क्या अमेरिका ने वहां जाके किसी नेतन्याहू का गिरबान पकड़ा? मेरी ये बात थी। पाकिस्तान के क्रिश्चियन से मेरा क्या गिला है? आप मेरे भाई हैं, जैसे मैं मजलूम हूं, जैसे मैं नहीं जा सकता वैसे आप नहीं जा सकते। लेकिन मुझे यह बताइए कि नेतन्याहू ने जब आपके वहां पर उसके रास्ते को बंद किया, उस गलीली के रास्ते को बंद किया, जब उसने जहां हजरत ईसा लेके, तो कौन खड़ा हुआ था वहां से? टोनी ब्लेयर खड़ा हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? इवन पोप नहीं खड़ा हुआ था। जुल्म की बात तो यह है। आपसे तो मैं मोहब्बत करता हूं, आप तो मेरी तरह मजलूम है इस मुल्क के अंदर। ना मैं गजा जा सकता हूं, ना तुम जा सकते हो। ना मैं अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को पूछ सकता हूं, ना तुम अपनी जगह को पूछ सकते हो। मेरा दुख है तुम्हारा, हमने किधर कहा यहूदियों को आपके इकट्ठे किया हुआ। तो ये जो बात आपने की है, ये आपने मेरे साथ ज्यादती की है। उसने मुस्लिम उम्मा के बारे में पूछा, मैंने आपकी उम्मा की बात कर दी। मैं 1 अरब 70 करोड़ हूं, आप 2 अरब 60 करोड़ हैं। आप तो उठें और इसराइल का करागमा कर दें। मेरा तो वहां कुछ नहीं है। मेरे नबी ने तो एक दिन के लिए गए थे, आपके नबी ने पूरी जिंदगी गुजारी हुई वहां पर। वो तो पैदा वहां हुए, वो तो वहां सलीब पे वहां से चढ़े, वो तो दर्श वहां देते रहे। वो पहाड़ी जिसके ऊपर गुंबद सगरा बना हुआ है, उस पहाड़ी पे खड़े हुए उनका कम का 200 दर्श है। मेरा क्या है वहां पर? मेरा तो कुछ नहीं है, आपका है सब कुछ। मैं आपके साथ मजलूम हूं, आप मेरे साथ मजलूम है इस मुल्क के अंदर। आए उठ के, जिन्होंने रोका हुआ उनके तहरीक चलाएं।